Hi students, a very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. So today's video is on new topic, that is intermolecular interaction from same chapter states of matter. तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के वेरियस टाइप्स है, उसका मैं एक छोटा सा समरी दे दूंगी एंड देन हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो टू टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं बेसिकली, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, intermolecular interaction and intramolecular interaction. Correct na, all of you? So inter is between the molecule, between two or more molecules, and intra is between two atoms inside the molecule. Okay, now for example, if you have two water molecule, so दो water molecule एक दूसरे से interacted है, so which interaction is this? Intermolecular interaction. But inside the water molecule between HOH, ये जो bonding है ये कैसी होती है? इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होती है. Okay, now intermolecular interactions are of 5 types: dipole-dipole interaction, ion-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, London dispersion force, and hydrogen bonding. And intramolecular are of two types: ionic or covalent. Okay, so here in this chapter we are only going to study intermolecular interactions. Okay, so let's start with first type of intermolecular interaction, that is dipole-dipole interaction. So क्या होता है ये? Dipole is what? What is dipole? So dipole-dipole interaction. Now for example, dipole-dipole interaction takes place between polar molecule. It takes place between polar molecules. It takes place between polar molecules. Okay. Now for example HCl, we have many HCl molecules. मेरे पास में बहुत सारे HCl के molecules present हैं. I have lots of HCl molecule. Now every one of you must be knowing hydrogen कैसा होता है. जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है, it is positive and chlorine is negative. Positive, negative, positive, negative, positive, negative. So now this negative जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन. और इसको क्या बोलते हैं? कैटायन. सो कैटायन और एनायन एटम्स के अंदर होता है, मींस इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन करना है तो इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन इज बिटवीन कैटायन एंड एनायन. जैसे आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो कैटायन और एनायन के बीच में होती है. बट जब भी हम लोग को दो मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग देखना है, सो वी हैव टू सी द बॉन्डिंग बिटवीन द डाइपोल. This is negative dipole, this is positive dipole. Negative dipole, positive dipole. So ये जो positive और negative dipoles है, ये क्या, ये क्लोरीन जो है वो स्लाइटली अट्रैक्ट करता है ये हाइड्रोजन को. ये दैट इज बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस. ये क्लोरीन क्या करता है? ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है. ये क्लोरीन क्या करता है? ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है. और ये जो इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ओके.
अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जो होता है दैट इज बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली. I'll repeat. Dipole-dipole interaction takes place between oppositely charged dipoles of polar molecule. Okay. Next is ion dipole interaction. अभी ion dipole interaction के लिए हम लोग एक example लेते हैं. I have a glass of water and now I am adding salt in it, NaCl. तो जैसे ही NaCl water में जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में. ठीक है. अब ये जो Na प्लस है ये क्या करेगा, सराउंड करेगा. किससे सराउंड करेगा, वाटर से सराउंड करेगा. क्यों सराउंड करेगा, क्योंकि ये वाटर क्या कर रहा है, उसको बॉन्ड्स बना रहा है. वाटर उसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. सो ये पॉजिटिव है, आयन है, तो ये क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करेगा. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज डाइपोल है. ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज डाइपोल. सो Na प्लस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्शन करता है और वो इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन. Ion, Na plus is ion and this is dipole, so that is known as ion dipole interaction. Now similarly Cl minus क्या करेगा, वो भी वाटर के साथ में बॉन्डिंग करेगा. It will also get surrounded by water. It will also get surrounded by water. ओके. तो अभी ये नेगेटिव है तो ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, पॉजिटिव डाइपोल, दैट इज विथ हाइड्रोजन. किसके साथ बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा. एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन. क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन. और ये जो प्रोसेस हो रहा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस. मींस आयंस गेटिंग सराउंड बाय वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज hydration. Energy is released and that energy is known as hydration energy. Okay. Next is dipole induced dipole interaction. Now this interaction takes place between polar and non-polar molecule. It takes place between पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलराइज्ड होता है, चार्ज्ड होता है. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है, अनचार्ज्ड होता है. इट इज अनचार्ज्ड. सो व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल कम्स इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज्ड पार्टिकल, तो ये क्या करता है, अपना चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस करता है. एंड देन वो भी क्या हो जाता है, फॉर टेम्पररी पर्पस, फॉर टेम्पररी बेसिस क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है. एंड देन चार्ज होने के बाद में उन लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और उसको बोला जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन. नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव अमोनिया एंड यू हैव बेंजीन. Okay. Now here this is negative dipole, positive dipole, negative dipole, positive dipole. So now this अमोनिया क्या करेगा, अपना चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस कर देगा. ये अमोनिया क्या करेगा, अपना चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस कर देगा. When benzene will come in contact with ammonia, ammonia is charged and benzene is uncharged. So benzene will introduce its charge on ammonia, will introduce its charge on benzene for a temporary period, and that वो टेम्पररी पीरियड तक इन लोग के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होता है. एंड वो बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्डिंग हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। Next interaction is London dispersion force. Now London dispersion force exists between all molecules. ये सब molecules के बीच में exist करता है। कैसे? वो देखो। Now for example मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। Now ये हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसका एक proton, एक electron. Now this electron will act as negative dipole and this will act as positive dipole. So dipole is basically due to charge. So ये negative dipole क्या करेगा? ये positive dipole को attract करेगा। ये negative dipole क्या करेगा? ये पॉजिटिव डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो मुझे बताओ HCl मॉलिक्यूल हो या फिर बेंजीन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हो, उनके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। दे आर सिचुएटेड बिसाइड वन अनदर। तो कोई भी दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के बाजू में सिचुएटेड है, जो एक दूसरे के नेबर्स है, उसके इलेक्ट्रॉन्स, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन को, पहले का प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एंड वो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स डेवलप होगा। सो देयरफॉर लंडन डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन all molecule in addition to other interaction. It exists between all molecule in addition to other interactions. Clear? Now London dispersion force is also known as Van der Waals force. क्या बोलते हैं इसको? Van der Waals force भी बोला जाता है। Now, London dispersion force is the only force which exists between two non-polar molecule. Non-polar molecule के अंदर सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, दैट इज बिटवीन पोलर एंड पोलर। आयन डाइपोल है, दैट इज बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है दैट इज बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। बट दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर रहेंगे तो उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? अभी सपोज यू हैव टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स, तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? कौन सा इंटरेक्शन होगा बताओ? टू नेबरिंग बेंजीन मॉलिक्यूल्स है, सो उसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन रहेगा? प्रीवियसली जितने भी किए उसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी पोलर है। तो दोनों पोलर है तो क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी लंडन डिस्पर्शन फोर्स। सो London dispersion force exists between all molecule in addition to other interaction. Means HCl के बीच में डाइपोल डाइपोल तो है ही, उसके साथ में लंडन भी है। बिटवीन अमोनिया एंड बेंजीन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल तो है ही, बट उसके साथ में लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी है। तो ऐसे ही लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, बट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दूसरा कोई भी फोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। जितने भी इंटरैक्शन है उसमें ये कैसा है? वीकेस्ट इंटरैक्शन है। ओके, नेक्स्ट इंटरैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ दिस इज द स्पेशल, ये क्या है? स्पेशल केस है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। Now this also exists between two polar molecule. Two polar molecule, ये भी दो polar molecules के बीच में exist करता है। But this exist किसके बीच में करता है? It is specially ये जो होता है, it is present
between hydrogen and highly electronegative atoms कौन से है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. फॉन. It is a bonding between hydrogen and phon, highly electronegative atom, fluorine, oxygen and nitrogen. जैसे water and water के बीच में जो interaction होगा, that will be a hydrogen bonding. Between HF and HF जो interaction होगा, वो hydrogen bonding होगा. Ammonia and ammonia के बीच में जो interaction होगा, that will be a hydrogen bonding. This is hydrogen positive dipole and this is negative dipole. This is negative dipole, this is positive dipole. Negative dipole, positive dipole. So this is between the polar molecule. अभी water and HF के बीच में भी जो अगर interaction अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी hydrogen ही रहेगा. If you see interaction between water and ammonia, वो भी hydrogen bonding ही है. This is negative dipole, this is positive dipole. This is negative dipole, this is positive dipole. If you see interaction between HF and ammonia, तो वो भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है. अब इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली बनाती हूँ तो सो दैट तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. You have HF, okay, and you have ammonia. So इसका negative dipole, इसका positive dipole. This is hydrogen bonding. And let me tell you, hydrogen bonding is the strongest bonding. This is the strongest bonding among all the bonding because it is between the hydrogen and highly electronegative atom. So polarization जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है and therefore ये bonding कैसा होता है? सबसे strongest bonding होता है. Okay. हाँ, बट इफ यू विल कंपेयर बिटवीन इंटर एंड इंट्रा, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर ही स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो प्योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होते हैं, आइदर बाय शेयरिंग और बाय डोनेटिंग और बाय गेनिंग. तो इंट्रामोलिकुलर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिकॉज दैट इज अ प्योर केमिकल बॉन्ड. और यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से होता है. डाइपोल, अपोजिटली चार्ज डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड्स बनाते हैं. That is intermolecular interaction. Clear all of you? So अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके कुछ MCQ सॉल्व करते हैं. ठीक है. फर्स्ट MCQ, which of the following is the correct order of interaction? अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया, क्या बताया? intramolecular interaction is stronger than intermolecular interaction. अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मेरे पास में आइस है, ओके, दैट इज वाटर सॉलिड. इसको मैं थोड़ा सा भी अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस तक ही ये क्या रहता है, आइस फॉर्म में रहता है, उसके बाद वो लिक्विड हो जाता है. तो थोड़ा भी अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो लिक्विड में चला जाता है. Then liquid at 100 degree Celsius it gets convert to gas. अब इसको above 100, above 150 डिग्री सेल्सियस के आगे ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है H2 and half O2 में. तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे आइस एकदम क्लोज है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. अब मैंने हीट किया तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर गए, मीन्स क्या ब्रेक हुआ है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हुआ, ब्रेक हुआ. अब मैंने इसको और हीट किया तो मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से क्या हो गए, दूर चले गए, मीन्स यहाँ पे और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिक्रीज हुआ. बट यहाँ पे मैं अगर इसको हीट कर रही हूँ तो इसके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, मीन्स अंदर के मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे लास्ट में इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ब्रेक होता है. अभी ये ब्रेक होगा, ये दो साथ में आ जाएगा एंड यू विल गेट हाफ O2. ओके, H2 प्लस हाफ O2. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसको लग रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ब्रेक होने के लिए. इसके लिए दिस इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट बॉन्ड. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्टेबल बॉन्ड इज हाईएस्ट. ओके, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. इंट्रा दो टाइप का होता है, एक तो आयोनिक होता है और एक कोवेलेंट होता है. सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी द कोवेलेंट. फिर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा,
फिर डाइपोल आएगा एंड सबसे वीकेस्ट जो होता है वो वैन डर वाल्स, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये ऑर्डर कहाँ पे है बताओ जरा मुझे। यस ऑल ऑफ यू, इट्स इन सी ऑप्शन, करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following set of molecule is the order of boiling point incorrect? So basically boiling point का क्या logic है? See, when size increases, size increase होता है तो number of electrons भी increase होते हैं, number of protons भी increase होते हैं, and जिसके वजह से वैन डर वाल्स फोर्स भी increase होता है। वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव हाइड्रोजन एंड आई हैव क्लोरीन। इन क्लोरीन अभी बट ऑब्वियस हाइड्रोजन का साइज इज स्मॉलर देन क्लोरीन, बट इस साइज क्यों स्मॉलर है? क्योंकि इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, बट इसके अंदर कितने हैं? 17 एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 17 plus 17, that is 34 electrons are there. So when size is increasing, electrons are also increasing. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बट प्रोटॉन्स भी, 34 प्रोटॉन्स भी है यहाँ पे 2 ही प्रोटॉन्स है। सो किधर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के बीच में कि 34 इलेक्ट्रॉन 34 प्रोटॉन्स के बीच में? इधर ही ज्यादा होगा ना। सो व्हेन साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है, and because of that boiling point also increases. So अभी चेक करते हैं हम लोग इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम आर्गन, तो हीलियम आर्गन जेनॉन, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सो ज्यादा किसका होना चाहिए? इसका होना चाहिए, फिर इसका, तो दैट इज करेक्ट ना, दिस इज करेक्ट। नाउ हियर इन दिस केस HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो ऑफकोर्स उसका ज्यादा होगा। फिर क्लोरीन एंड ब्रोमीन में किसका ज्यादा होगा? साइज किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना, HBr का, तो इसका ज्यादा होगा ना इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे देखो करेक्ट है ना, वाटर H2O का ज्यादा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में कैसा होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम। सो ये दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका साइज ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगा ना, एंड देन सबसे कम इज दिस, एंड दिस इज तो क्लियर ओनली, यहाँ पे इसका साइज सबसे बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अरेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor is most responsible for increasing boiling point of noble gases from helium to xenon? That is increase in polarization. Polarization increase होगा, intermolecular force increase होगा, and then boiling point will also increase. Which of the following will have lowest boiling point? किसका आएगा lowest? जिसका साइज सबसे छोटा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी छोटा होगा। किसका साइज सबसे छोटा है? हाइड्रोजन का, सो आंसर विल बी H2। What is the dominant intermolecular force or bond that must be overcome in converting liquid CH3OH to gas? क्या होगा? CH3OH को अपने को क्या करने का है? गैस में कन्वर्ट करना है। सो लिक्विड में कैसा रहेगा? मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर रहेगा। इसको मैं हीट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गैस में, और दूर चला जाएगा ना एक दूसरे से। सो इधर कौन सा इंटरेक्शन वीक हो रहा है लिक्विड से गैस के लिए? इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। फिर ये कैसा होता है? मीथेनॉल इज हाउ इट इज, इसका नेचर क्या है? कोवेलेंट है, सॉरी पोलर है कि नॉन पोलर है? नेचर इसका नॉन पोलर है ना, तो बिटवीन नॉन पोलर विच फोर्स कैट एग्जिस्ट? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द बेंजीन मॉलिक्यूल। तो अभी जस्ट मैंने बताया ना बिटवीन टू
अब बेंजीन के मॉलिक्यूल से अभी इसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, तो सबसे पहले चेकआउट करो बेंजीन कैसा है नेचर में, कैसा है, इट इज नॉन पोलर ना, ये कैसा है, नॉन पोलर है नेचर में। नॉन पोलर होने की वजह से कौन सा इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, लंडन डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन non-polar molecules. Only London dispersion force exists between non-polar molecule. So यहाँ पे आंसर क्या आएगा, it will be B. So I hope all of you have understood this video properly and अगर पसंद समझ में आया है, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड फिज़िक्स के मैथ्स के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल Catch 25 Science Academy। थैंक यू सो मच, टेक केयर।